Hi friends, welcome to Unacademy, India's largest online learning app. We are going to provide you support for IIT, JEE, NEET, UGC, then SSC exams, MPSC, UPSC class 9, 10th, 11th and 12th also. You can ace your final exams with Unacademy Plus subscription. So Unacademy Plus subscription is at flat 10% off discount. So, dear learners, welcome to the class. I am Trupti Deshmukh. I have done my Masters of Computer Engineering. So, I am going to teach you subjects like C, C++, C Sharp, ASP.NET, programming in Python, as well as I am going to teach you the subjects like information technology for class 9, 10th, 11th, 12th, and also computer science for class 9, 10th, 11th, 12th. So, please वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें. So students, let's get started with the today's lecture. Hi friends, welcome to today's session. So before to start with the actual session, let me tell you about the exciting offer for all CBSE classes from class 6 to class 12 students. That is, ask 5 doubts. Yes, you can ask any 5 doubts related to the particular subject, and you can get free 7 days trial of the plus subscription. So you can write your doubts in the comment section which is given below, and you can ask any 5 doubts and get the totally free 7 days trial of the plus subscription. So you can download the app now for that, and you can use my referral code, that is TD Live. Yes, but offer is valid from the 4th of July 2021 to 9th of July 2021. Okay, just concentrate on the lectures and you can ask any 5 doubts related to your subject. So let's get started. So in today's lecture, we are going to study class 10th Information Technology code 402 under NSQF. So now we are going to study in today's lecture scenario analysis. Okay, so let's get started with it. So these are the content of today's session, that is introduction, consolidating the data, calculating subtotals, what if analysis tools. It includes the scenarios, goal seek and solver. Okay, so आज के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्चुअल यूजिंग द स्प्रेडशीट्स और डेटा शीट्स हम लोग ज़्यादा यूज करेंगे, एंड we are going to have some particular related operations related to with that particular data sheets. So आज से हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज करने वाले हैं फॉर टुडेज सेशन. And yes, obviously, we are going to use some of the mathematical formulas or some of the different ideas. I hope you have gone through the basics of Microsoft Office Excel. If not, please go through the particular basics of that, and if required, please comment about it if you want the extra sessions for the Microsoft Office Excel. Because see, जैसे कि कोई भी कॉर्पोरेट ऑफिस होता है वगैरह, कोई भी पर्टिकुलर कंपनी होती है जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जनरली कैलकुलेशंस करते हैं, वेदर इट इज इन द टर्म ऑफ द वर्किंग आवर्स, इट इज इन द टर्म्स ऑफ द मैन, देन इट इज द टर्म्स ऑफ द वट एवर द इकोनॉमिक विच वी आर गोइंग टू यूज, द प्राइस, द क्वांटिटी ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट. ये सब चीज़ें जो है वो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल यूज करके हैंडल करनी पड़ती है. वट एवर द मॉनिटरी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्टिकुलर कंपनी टू रन, so particular paybacks, then payrolls for the particular कंपनी वर्कर्स. ठीक है, सो ये सारी चीजें जो हैंडल करनी होती है हमको, जनरली हम लोग क्या करते हैं, यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल हैंडल करते हैं. इससे भी ज्यादा एडवांस टेक्निक्स भी अवेलेबल है, बट फॉर द बेसिक्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल. So first me tell you about the introduction about the how to use the Excel or how to use the particular spreadsheets data. देखिए, सिनेरियो एनालिसिस मतलब क्या, वी आर गोइंग टू यूज द पर्टिकुलर स्प्रेडशीट डेटा हियर. नाउ व्हेनेवर वी आर गोइंग टू वर्क विद द रियल बल्क डेटा, such as for example there are so many students in a class and there are so many students in a school. So ये students का पूरा जो डेटा है हैंडल करने के लिए, योर नेम, योर मोबाइल नंबर्स, योर डेट ऑफ बर्थ, योर क्लास, योर मार्क्स, योर डिस्टिंक्शंस, योर डिविजन्स, योर वट एवर द रैंक इज देयर, सो इस सब का डेटा जो है वो बल्क में रहता है. Now, to make somehow critical decision based on this particular data and to find out the impact of the working data, what we are going to do, we are going to use the particular factors related with the particular data. Now, for such crucial analysis, we are going to have some of the Microsoft Office Excel's functions. That is, for example, we are going to how to consolidate the data. Then we are going to show what if analysis, which is used for the decision making statements,
And yes, obviously we are going to use the particular what if analysis statements, such as how to use the scenarios there, then how to use the goal seek there, then how to use the solvers there. Okay, so based on all these things we are going to discuss our today's topic. Okay, so first thing which we are going to study is consolidating the data. Okay, so data consolidation is nothing but it is a process of combining or collecting or integrating. I repeat, the consolidating means what? It is a process of collecting, combining, or integrating similar type of data for calculation purpose. Okay, what we can say that we are going to collect the multiple sources data into a single destination folder. हम लोग क्या करते हैं, पर मल्टीपल रिसोर्सेस लेते हैं और उसका जो पर्टिकुलर कॉमन डेटा होता है वो लेते हैं और एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन फाइल में उसको स्टोर करते हैं बाय अप्लाइंग सम पर्टिकुलर फॉर्मूलाज। अभी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू अप्लाई सम स्पेसिफिक ऑपरेशंस लाइक सच एज सम, काउंट, देन मैक्स, मीन, एवरेज एंड सो। So by applying these particular functions, specific functions, we are going to have the consolidating of the data. So we will see firstly the example of how to consolidate the data, and then we will move towards the next point. Okay, so just I will open my Microsoft Office Excel sheet. आई विल ओपन दी ब्लैंक वर्कबुक हियर। ठीक है, अभी वर्कबुक आप हम लोगों ने ओपन किया तो यहाँ पर रो बाय कॉलम आप लोगों को एक पर्टिकुलर शीट दिखती है, वो दैट इज नथिंग बट दी स्प्रेडशीट। यहाँ पर आप लोगों को अभी स्प्रेडशीट दिखी है। नाउ टू अंडरस्टैंड द डेटा कंसोलिडेशन इन आवर वर्कबुक, फर्स्टली वी हैव टू एंटर सम पर्टिकुलर डेटा। ओके, तो ठीक है, फिर हम चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर डेटा शीट है, वहां पर कुछ डेटा एंटर करके लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज आई एम गोइंग टू राइट हियर सीरियल नंबर। ओके, कुछ 1 2 3 4 likewise I am going to write, then सीरियल नंबर की जगह हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर रोल नंबर लेते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स के रोल नंबर 1 2 3 4 हम लोगों ने ले लिए फिलहाल के लिए। देन आई एम गोइंग टू एंटर द मार्क्स, हिंदी, English, then suppose I am going to write science। ठीक है, अब फिलहाल के 3 मार्क्स ले लेते हैं, हिंदी, इंग्लिश एंड साइंस। then marks are out of 100, so I will write some random values here, suppose 78, 89, 86, 75। okay, now I am going to enter the marks of English, 89, 86, 76, 84। now I am going to write marks for the science, 90, 95, 87 and 96। ठीक है, ये सब मार्क्स हम लोगों ने लिख लिया है। ठीक है, दीज आर व्हाट लेबल्स। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग ठीक से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए, और इसको ठीक है कलर दे दिया। ठीक है, ये रोल नंबर्स हैं, दीज रोल नंबर्स आई विल आल्सो write them in the different color format। okay, और इसका बैकग्राउंड हम लोगों ने कलर कर लिया। ठीक है, ये शीट 1 हमारी हो गई। अभी समझो ये डेटा जो है अपनी शीट में जो है स्टूडेंट का, यहाँ पर मैं एक पर्टिकुलर लेबल देती है, स्टूडेंट डेटा फॉर द ईयर। अभी आई विल राइट हियर ईयर 2019 का है मेरा डेटा स्टूडेंट्स का। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, इन सबका फॉन्ट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं सो दैट द विजिबिलिटी विल बी मोर क्लियर। ठीक है, फॉन्ट 14 कर दिया, इसको बोल्ड कर देती हूँ आपको और अच्छे से दिखे, और इसका भी फॉन्ट में थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ। ओके, 18। ठीक है, अभी इसकी फॉर्मेटिंग मैंने इतनी ठीक से नहीं की हुई है, आप चाहे तो इसकी बहुत से अच्छी सी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, बट टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू सी विद पर्टिकुलर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हियर, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू कंसंट्रेट ऑन द फॉर्मेट। ठीक है, रोल नंबर, इंग्लिश एंड हिंदी। अभी मुझे क्या करना है, एक और शीट लेती हूँ। ओके, और ये शीट में मैं क्या कर देती हूँ, ये डेटा कॉपी कर इसमें थोड़े से चेंजेस कर देती हूँ। आई विल कॉपी इट
and I will paste it here. Okay, अभी ये ईयर होगा 2020. Okay, so now I will change some marks here. अभी मैं फिर से इसके मार्क्स चेंज कर देती हूँ. 86, 87. The next one I am going to write suppose 80 and 89. 90, 98, 92, 96, 78, 89, 95, 98. ये हो गया. अभी मैं क्या करने वाली हूँ, ये दोनों लेटर का जो है अभी फिलहाल के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका टोटल ले लेते हैं. अभी मैंने क्या कर लिया, हिंदी का टोटल ले लेती हूँ मैं यहाँ पर. देखिए इसको पूरा सेलेक्ट कर दिया और मैंने एटोसम फंक्शन यहाँ पर यूज किया. इसका क्या हो गया, टोटल हो गया. सेम केस यहाँ पर एटोसम, सेम केस यहाँ पर एटोसम. अभी मैं क्या करती हूँ, फॉर्मेट पेंटर से यहाँ पर फॉर्मेटिंग कर देती हूँ. आई विल चेंज इट्स कलर. यहाँ पर मैं राइट करूंगी टोटल. फॉर्मेट पेंटर से मैंने यहाँ पर फॉर्मेटिंग कर दी. ओके, सो सेम वे व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, यहाँ पर एटोसम कर देती हूँ. एटोसम. नेक्स्ट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, एटोसम एंड लास्ट. ये हो गया. अभी फॉर्मेट पेंटर से I will format it. Format painter से I will format it also, and I will write the name here as total. ठीक है. अभी हम लोगों ने यहाँ पर टोटल ले लिया है. Just I will apply some borders here. डेटा अगर जितना अच्छे से सॉर्टेड हो उतना अच्छे से आपको समझ में भी आ सकता है. ठीक है, ये हो गया. अभी हमारी 2 शीट्स रेडी है. ठीक है. नाउ कंसोलिडेटिंग डेटा मीन्स व्हाट, आई एम गोइंग टू टेक द मल्टीपल सोर्सेज एंड आई एम गोइंग टू सेव दिस इनटू द पर्टिकुलर डेस्टिनेशन. देखिए अभी मुझे क्या करना है, इफ वी सी हियर, मुझे ये सारे जो टोटल्स है मुझे एक पर्टिकुलर शीट में चाहिए. हिंदी की एक पर्टिकुलर शीट की टोटल है, दो शीट से हिंदी की यहाँ पर, दैट इज 342 एंड 328. तो फिर मुझे क्या करना है, इन दोनों को कंबाइन करना है. तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, कंसोलिडेट द डेटा ऑफ शीट 1 एंड शीट 2. ठीक है, मैं कर दिया फिलहाल के लिए. अभी मुझे क्या करना है, देखिए अभी कंसोलिडेट कहाँ से करना है. देखिए यहाँ पर बहुत सारे टैब से फाइल है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू एंड हेल्प. सो आई विल गो टू द डेटा टैब. आज हम लोग जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाले हैं फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशंस, दैट विल बी डन अंडर द डेटा टैब. देखिए अभी यहाँ पर डेटा टैब में बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, यू कैन यूज एज पर योर रिक्वायरमेंट. देखिए अभी यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, कंसोलिडेट ऑप्शन है. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे कंसोलिडेट. इसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन पहले से मिल जाएगा. इट इज गोइंग टू समराइज डेटा फ्रॉम सेपरेट रेंजेस, consolidating the results in a single output range. Now for example, if you have a worksheet of expense figures for each of your regional offices, you might use a consolidation to roll up these figures into a corporate expense worksheets. Okay. So now what I am going to do here, firstly I will click on the consolidate. ठीक है. अभी मुझको फंक्शन कौन सा करना है, देखिए यहाँ पर डिफरेंट फंक्शंस है, सम है, काउंट है, एवरेज, मीन, मैक्स वगैरह. ठीक है, अभी मुझे सम लेना है. अभी रेफरेंस रेंज आई विल सेलेक्ट इट. ठीक है, अभी रेफरेंसेस मुझे कौन सी लेनी है, यहाँ की लेनी है. ठीक है, सो आई विल चेक दिस रेफरेंस रेंज एंड दिस वन. ठीक है, ये दोनों मैंने सेलेक्ट कर लिया. ठीक है, एंड आई विल पेस्ट इट हियर. Okay, now I am going to add it here, and whatever I am going to use labels, for now I will not use these particular labels, we'll see it later. Okay,
नाउ नो डेटा वॉज कंसिडर्ड। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे यहाँ पर, देखिए, क्योंकि हम लोगों ने दोनों का सेपरेटली डेटा मर्ज नहीं किया। ठीक है, अभी हम लोग फिर से ट्राई करके देखते हैं। ओके, हम लोगों ने अब इसका एट ए टाइम मर्ज किया था, इसकी वजह से हमको ये एरर आ रहा था। ओके, नाउ व्हाट आई विल डू अगेन द कंसोलिडेट। फिलहाल के लिए मैं क्या करूंगी, ओके, सब अनचेक करूंगी। इसके पर्टिकुलर टोटल्स जो है हम लोग उतने मर्ज करके देखेंगे। ठीक है, आई विल यूज दिस पर्टिकुलर टोटल्स हियर, देन आई विल चूज द ऑप्शन एड। उसके बाद मैं क्या करूंगी, शीट 2 की, देखिए वो बाय डिफॉल्ट उसने ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लिया। ओके, शीट 2 के मैं भी ऐड कर दूंगी। ओके, एंड इन शीट 3 इसने क्या कर दिया, बाय डिफॉल्ट वो कॉलम्स जो है, वो रोज जो है वो सेलेक्ट करके ले लिया। ओके, एंड आई विल, yes, you can see the total is going to be added here. Okay, so easily we can do the particular changes. अभी फॉर एग्जांपल समझ के लीजिए हम लोगों ने इसमें कुछ चेंजेस किए हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर टोटल देखिए 670, 711, 728। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस करती हूँ। ये वाला कॉलम कौन सा है, 670 फर्स्ट। नाउ आई विल डू हियर द एंटरिंग वैल्यू 81। ठीक है, यहाँ पर चेंज हो गया, पर क्या वो यहाँ पर चेंज हो रहा है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर हम लोग पीछे वाले सोर्स में चेंज कर रहे हैं तो ये कंसोलिडेशन ऑफ डेटा इज नॉट गोइंग टू बी करेक्ट। सो इस बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, आई विल डिलीट इट होल। नाउ आई विल डू वन थिंग, व्हाट आई विल जस्ट शिफ्ट इट हियर। I again press the consolidate. I will delete the previous all things. Now I will add reference. अभी मैं क्या करती हूँ, पूरे टोटल ले लेती हूँ। From here I am going to start. Okay, then I will add it. Then next thing, okay, इसने automatically select कर लिया है, then I have to simply add it, and then shift. Now I will use the labels, top row, left column. लेबल्स जो है इसके हम लोग क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। देखिए ये क्या हो गया, एज इट इज कॉपी हो गया। मैं यहाँ पर कर लेती हूँ इसको शिफ्ट। नाउ इसको हम लोग क्या करेंगे, अभी फिर से लिंकिंग जो है इसका अवेलेबल नहीं हुआ है। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इसका क्रिएट लिंक्स टू दी सोर्स डेटा करके देखते हैं। आई विल क्रिएट लिंक्स टू दी सोर्स डेटा। ओके, ठीक, इसको सिलेक्शन नहीं हुआ है, इसके बाद इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसको सेलेक्ट करके यूज करेंगे, क्रिएट लिंक्स टू सोर्स डेटा। इसको आई थिंक मुझे फिर से एक बार नया करना पड़ेगा, सो आई विल रीड इट प्रीवियस। Okay, simply what I will do, I will press on consolidate. I will delete all this one by one, delete and delete. Okay, now I will select the references. पहला रेफरेंस कौन सा है हमारा, शीट 1 का है। Okay, then add sheet 1. Then same way we are going to add sheet 2's data here. Okay, and lastly what I am going to do, I am going to print this data here. Okay, I am going to have the top row, left column, create links to the source data, and I will select okay. Okay, लिंक क्रिएट नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार फिर से हम ट्राई कर देते हैं, एंड आई विल ओके। लाइकवाइज वी आर गोइंग टू डू, अभी मैंने फिर से क्या कर दिया, इस पर कंसोलिडेट पर क्लिक कर दिया। अभी रेफरेंस वाले आई एम गोइंग टू टेक फ्रॉम शीट 1। ठीक है, so just I will try using these values only. Okay, I will just click on add. शीट 1 की वैल्यूज ऐड हो गई। उसके बाद हम लोगों ने क्या कर दिया, शीट 2 की वैल्यूज है बाय डिफॉल्ट उसने जितनी चूज करनी थी उतनी चूज कर ली। सो जस्ट आई विल सिंपली ऐड। ठीक है, और लास्टली हम लोगों ने क्या कर लिया, क्रिएट लिंक्स टू सोर्स डेटा। ओके, ठीक है, अभी वैल्यूज आ गई। अभी यहाँ पर हम लोगों को क्या देखना है, वेदर द डेटा इज एक्चुअली लिंक टू इट। अभी देखिए यहाँ पर हम लोग देखिए लास्ट वाला जो कॉलम है ये कौन सा है, टोटल का है, राइट। सो हम लोग क्या कर देते हैं, अभी टोटल चेंज करने के लिए आई विल राइट हियर, देखिए यहाँ पर क्या है, कैलकुलेशन 672 है। आई विल जस्ट ऐड वन सिंगल वैल्यू हियर, सपोज आई एम गोइंग टू राइट 90।
ओके 345 हो गया यहाँ पर. यस, इट इज गोइंग टू हैव द वैल्यू दैट इज व्हाट 673. Okay, so easily we can have the linking of the particular sources here. चलो अभी ये वैल्यूज तो हो गए. दैट इज हाउ टू यूज द कंसोलिडेट इन आवर शीट. ठीक है, एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं. अभी इस बार हम क्या करेंगे, उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज यूज करेंगे. जैसे कि हम लोग देखते हैं यहाँ पर कंसोलिडेट करेंगे. अभी रेफरेंस यहाँ पर फिर से लेंगे एक बार. कौन सा वाला, शीट 1 का. अभी आई एम गोइंग टू सेलेक्ट होल. ठीक है, मैं पूरा का पूरा सेलेक्ट कर दिया, इसको ऐड कर दिया. देन नेक्स्ट आई हैव सेलेक्टेड शीट 2 एंड आल्सो इट इज ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड द होल एंड आई हैव एडेड. अभी हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट लिंक्स टू सोर्स डेटा. आई एम गोइंग टू दिस टॉप रो एंड इट्स लेफ्ट कॉलम. यूज लेबल्स इन टॉप रो एंड लेफ्ट कॉलम एंड क्रिएट लिंक्स टू सोर्स डेटा. ओके, यस, ऑब्वियसली यू कैन सी इट हियर व्हाट. यहाँ पर जो अपने ये थे serial number, that is roll number, the name of the particular label, that is Hindi, English and Science, वो भी ऐड हो चुके हैं and our total is there. Okay, likewise we can see. If you observe here, यहाँ पर एक दो कॉलम्स आए हैं जो सीरियल नंबर के साइड पर है. देखिए यहाँ पर ये शीट में जो है ये अवेलेबल नहीं है, ये शीट 2 में भी नहीं है, शीट 3 में है. तो फिर इसको एक्सपांड करके देखिए क्या है. देखिए ये एक्चुअली क्या है, टोटल से 78 and 86. If you observe here, 78 is of Hindi marks of year 2019 and 86 are the Hindi marks of 2020. If you observe here, I will minimize it again and you can see here the formula, that is sum of C4 for C5 and sum of D4 D5. So likewise we can see here the formulas are going to be applied here. ठीक है, वैसे हम लोग ये शीट में देख लेते हैं. यहाँ पर अगर आप लोग देखें, देखिए ये बुक 1 का है. कौन सा वाला शीट, शीट 1 है, ये शीट 2 है. ठीक है, अभी ये एक ही बुक के अंदर इसलिए यहाँ पर आपको सेम दिख रही है बुक 1. यहाँ पर भी आप लोग देखिए, एक्सपांड करके देखेंगे तो उसकी दोनों वैल्यूज आ जाएंगी. सो इन दिस वे वी कैन इजीली यूज द कंसोलिडेटेड ऑफ डेटा. सो जस्ट वैल्यू सेलेक्ट करते वक्त आप लोग प्रॉपरली उसको यूज करें ताकि आपको क्या हो, वो पर्टिकुलर जो चीजें हैं वो समझ में. I hope you understood this point. That is how to use the consolidation of the particular data. अब यहाँ पर समझो हम लोगों ने क्या कर दिया, जनरली क्रिएट लिंक्स टू सोर्स डेटा अगर हम लोग नहीं करते हैं तो क्या होता है, वैल्यू चेंज जो होती है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं होंगी. अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पर 673 टोटल है, नहीं अभी 711 टोटल है इंग्लिश का. तो फिर मैं इंग्लिश के मार्क्स थोड़े से बढ़ा देती हूँ. I will make it as 92. क्या था टोटल हमारा 711, 730. Yes, it is running correctly. So in this way we can use the consolidation of data. Just आपको क्या करने हैं, रेंज जो कुछ भी आप लोग चूज करेगा वो पर्टिकुलर रेंज चूज करते वक्त कंफ्यूज ना हो. The range should be checked and cleared properly. Okay, that's all for the consolidation of the data. Okay, I will write here title as consolidate data of sheet 1 and sheet 2. ठीक है, फिलहाल के लिए अभी फॉर्मेटिंग पे हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप लोग ज्यादा से ज्यादा उसको यूज करें. I have saved it here. Now moving towards the next point, we are going to see now the calculating subtotals here. Now what are the subtotals? Subtotals means if we have to analyze the data step by step in the huge amount. So at that time what we can use the calculate the subtotal of the given data here. Now here आप लोगों को क्या करना है, how to calculate the subtotal. अभी हम लोग क्या करते हैं, फिलहाल के लिए एक पर्टिकुलर शीट 2 है, उसकी हम लोग क्या करते हैं, मूव और कॉपी. ओके, शीट 2 की कॉपी हम लोग मूव टू इट एंड क्रिएट अ कॉपी कर लेते हैं. शीट 2 कॉपी बना ली हम लोगों ने. अभी मुझे क्या करना है, ये पर्टिकुलर डेटा जो है उसके क्या करना है, सब टोटल लेनी है. दैट इज व्हाट 35 इज होल अमाउंट, दैट इज होल टोटल. इट इज 687, 81 एंड 91 का टोटल क्या हो गया, 345 हो गया. अभी मुझे वैसे ही अभी क्या करना है, सब टोटल जो है वो करनी है पर्टिकुलर हिंदी सब्जेक्ट की. अभी देखिए वो कैसे करनी है हम लोगों को. आई एम गोइंग टू सेलेक्ट इट
and I am going to calculate the subtotal here. Okay, now here what I am going to do, add subtotal to whom, हिंदी. ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, हिंदी या सब्जेक्ट के लिए हम लोग उसकी सब टोटल जो है वो कैलकुलेट कर देते हैं. एंड आई विल क्लिक ऑन ओके. देखिए अब यहाँ पर इसने क्या कर दिया, ऑटोमेटिकली क्या कर दिया, नया वाला जो है सब टोटल का कॉलम जो है वो ऐड कर दे. देखिए यहाँ पर 86 सब टोटल, यहाँ पर 87 का है. और उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो टोटल कैसे कैलकुलेट की जा रही है यहाँ पर वन बाय वन. इफ यू सी नाउ, इफ यू ऑब्जर्व हियर, यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक पर्टिकुलर एक ही कॉलम है और उसी कॉलम पर हम लोगों ने क्या किया है, सब टोटल का ऑपरेशन जो है वो अप्लाई किया है. ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा दूसरा एग्जांपल लेंगे जहां से आपको अच्छे से समझ में. ठीक है, अभी सपोज पर्टिकुलर एक जोन है, वहां पर एक पर्टिकुलर हम लोग प्रोडक्ट ले रहे हैं और वो प्रोडक्ट के लिए एक पर्टिकुलर प्राइस जो है हम अप्लाई कर रहे हैं. That is particular rate will be there. Okay, so likewise suppose I am going to have, suppose a particular zone is there, Mumbai, then Mumbai, suppose I am going to have Pune, Delhi, Bangalore, ठीक है. अभी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, सपोज पर्टिकुलर P1, P2, P1, P2. कलर प्रोडक्ट है यहाँ पर P3, then P4, then again I am writing P1 and P2, and again I am writing P4. ओके, अभी यहाँ पर जोन के वाइज हमारा जो रेट है पर्टिकुलर प्रोडक्ट का वो डिफरेंट है. सपोज आई एम गोइंग टू रेट 1000, 2000, then 1000. ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसको ऑटो फिल करके लेते हैं ये एक पर्टिकुलर रेट. अभी हम लोग क्या करेंगे, पर्टिकुलर जोन के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, वो सब टोटल करके लेंगे पर्टिकुलर रेट का. ठीक है, देखिए यहाँ पर सब टोटल जो है वो हमेशा किसका होता है, पर्टिकुलर नंबर्स का ही यहाँ पर हम लोग सब टोटल कर सकते हैं. नाउ ओके, एट ईच चेंज इन जोन, जिसे जोन चेंज होगा वैसे क्या होगा, हमारा सब टोटल हो जाएगा. ठीक है, आई विल अप्लाई. ठीक है, एड सब टोटल टू विच कॉलम, रेड कॉलम. ठीक है, सो आई विल अप्लाई इट हियर. ओके, समरी बिलो द डेटा. देखिए यहाँ पर हमको क्या मिल गया, मुंबई का टोटल, पुणे का टोटल, दिल्ली टोटल, बैंगलोर टोटल एंड लास्टली ग्रैंड टोटल. नाउ इफ यू ऑब्जर्व, यहाँ पर आपको 3 कॉलम्स मिलते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू मिनिमाइज वन थिंग. देखिए यहाँ पर क्या हो गया, मुंबई, पुणे, दिल्ली एंड बैंगलोर टोटल. अगेन आई एम गोइंग टू एक्सपैंड इट. देन अगेन लास्टली हमको क्या मिलता है, एक पर्टिकुलर ग्रैंड टोटल मिलता है. सो यू कैन मैक्सिमाइज दिस आल्सो. ओके, सो लाइकवाइज वी कैन अप्लाई दी पर्टिकुलर टोटल. सिर्फ कैसे करना है हमको, सब टोटल में जाइए और अकॉर्डिंग टू द जोन यू कैन हैव. अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट फंक्शन यूज कर सकते हैं. यूज फंक्शन, सपोज आई एम गोइंग टू यूज काउंट एंड आई एम गोइंग टू सेव इट इन द रेट. ओके, मुंबई काउंट कितनी है, 2, 2, 3 एंड बैंगलोर काउंट 2. ओके, लाइकवाइज वी कैन हैव द काउंटिंग हियर आल्सो. Okay, so in this way we can apply the subtotal function as per the need of our particular documentation. यहाँ पर आपको क्या होता है, पर्टिकुलर एरिया वाइज और पर्टिकुलर आप लोगों को कोई पर्टिकुलर कंटेंट है तो वो कंटेंट के हिसाब से आप लोग क्या कर सकते हो, सब टोटल जो है वो काउंट कर सकते हो. सो यहाँ पर अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, दैट इज आफ्टर द सब टोटल वी आर गोइंग टू सी दैट इज हाउ टू यूज द व्हाट इफ एनालिसिस. Now, first of all, we will see what if analysis is what. So, generally, whenever we have to make some decisions based on the values. Likewise, that is a scenario what if analysis. We can call it as the changing values in a cell to see how those changes will affect the outcome of formula on the worksheet. ठीक है, अभी what if analysis में देखिए हमारे पास यहाँ पर 3 पॉइंट्स है. फर्स्ट वन इज सिनेरियो, देन गोल, सीक एंड सॉल्व. Okay, so we will see them one by one. So whenever you are going to have some different scenarios, and the different scenarios can be solved by using the what if analysis.
Now we are going to see one by one. It is how to use the scenarios, then how to use the goal seek, and how to use the solver here. So before to start with the particular point, just I will open the spreadsheet here again. Okay, so I will delete some previous data here. Okay, so now let us see if we are going to use it anywhere. Just I will save it. Okay, just consolidation of the sheet I will keep it as it is. Okay, हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक नई शीट ले लेंगे, वहां पर हम लोग क्या करेंगे, व्हाट इफ एनालिसिस जो है वो यूज करके देखेंगे. सो पहला पॉइंट कौन सा है हमारे व्हाट इफ एनालिसिस का? फर्स्ट वन इज द व्हाट सिनेरियोस. So first of all, what is mean by the scenarios? Look, scenario is a what if analysis tool which helps to build a model wherein changes made in values are reflected in the possible outcome, which is based on the formula using the particular values. So यहाँ पर हम क्या करेंगे? The switching is very simply by using these scenarios. So switching किसी करनी है by using scenarios, वो हम लोग आज के लेक्चर में देखते हैं. So first of all, how to use these scenarios here. Now what I will do, firstly I will open the Excel sheet. Then what I will do, एक पर्टिकुलर डेटा जो है स्टूडेंट डेटा फॉर द ईयर 2020 जो है हम लोग क्या करेंगे, कॉपी करके लेते हैं. ठीक है, एक पर्टिकुलर शीट में. ओके, यहाँ पर एक शीट है. सो हम लोग वहां पर ये कॉपी करके लेंगे. नाउ व्हाट आई विल डू, व्हाट इफ एनालिसिस आप लोग यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर डायरेक्टली अवेलेबल है. सो फिर जस्ट वहां पर जाइए. देन आई एम गोइंग टू डू द सिलेक्शन ऑफ द ऑप्शन सिनेरियो मैनेजर. ओके, यहाँ पर क्या करता है सिनेरियो, क्रिएट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ वैल्यूज और सिनेरियोज एंड स्विच बिटवीन देम. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, सिनेरियोज, सिनेरियो मैनेजर ओपन हो गया. एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू, सिनेरियो नेम. ठीक है, नाउ व्हाट आई विल डू, स्टूडेंट डेटा फॉर द ईयर 2020. सो यहाँ पर नेम हम लोग लिखते हैं 2020 मार्क्स ऑफ हिंदी सब्जेक्ट. ठीक है, और चेंजिंग वैल्यू जो है, दिस चेंजिंग सेल कौन सा है, देखिए यहाँ पर चेंजिंग सेल सपोज रोल नंबर 2 का है, तो फिर वो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करके लेते हैं. चेंजिंग सेल इज 2. सेल 2 मतलब कौन सी हुई, देखिए यहाँ पर C5, राइट. ओके, यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया और उसको ओके कर दिया. एंड एंटर दी वैल्यूज फॉर ईच ऑफ द चेंजिंग सेल. ठीक है, जो वैल्यू है वो हम लोगों ने क्या कर दी, ऐड करके दी. ओके एंड ऐड. ठीक है, वो ऐड हो गया. एंड आई विल क्रिएट हियर क्लोज. नाउ आई एम गोइंग टू सेव. ठीक है, देखिए यहाँ पर वैल्यू कौन सी थी, 2021. नाउ सपोज अभी हम लोग क्या करते हैं, ऐसा नहीं होता है, बट एक्चुअली व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं बाकी सारे मार्क्स एज इसलिए रखती हूँ और स्टूडेंट डेटा फॉर द ईयर 2021 इसको कन्वर्ट कर देती हूँ. और यहाँ पर क्या होता है, बाकी मार्क्स जो है ठीक है बदल जाते हैं बाकी सभी, पर फिलहाल के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ही मार्क्स जो है हिंदी के आई थिंक C5 में के हम लोगों ने चेंज किए थे, 87 थे, उसके मार्क्स हो गए कम, 78 हो गए. एंड नाउ आई एम गोइंग टू हैव दिस सिनेरियो फॉर दैट. तो चलिए अब इसका हम लोग क्या करते हैं, सिनेरियो देख लेते हैं. आई विल गो टू द सिनेरियो मैनेजर. यहाँ पर देखिए 2020 मार्क्स ऑफ हिंदी. अभी हम लोगों ने यहाँ पर कौन से रोल नंबर को चेंज किए थे, इफ यू रिमेम्बर, आई थिंक हमको वो भी नाम लिखना चाहिए था, दैट इज रोल नंबर 2 के. ठीक है, नाउ व्हाट आई विल डू, शो. देखिए इफ यू ऑब्जर्व हियर, उसके मार्क्स कितने थे, 87 थे, और हम लोगों ने कौन क्या किए थे, उसके मार्क्स 78 किए थे. एक बार फिर से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक और सब्जेक्ट के मार्क्स चेंज करके उसको सिनेरियो ऐड कर देते हैं. ठीक है, नाउ सपोज फॉर साइंस मार्क्स, साइंस के रोल नंबर 1 के मार्क्स जो है 2021 के जो मार्क्स हैं वो क्या है, सपोज 78 है, राइट. सो अभी मैं क्या कर देती हूँ, उसके मार्क्स जो हैं वो चेंज कर देती हूँ. नाउ सपोज आई एम गोइंग टू राइट फॉर द ईयर ऑफ 2019. ठीक है, अभी उसके मार्क्स जो है हमको क्या करने हैं, 2019 के जो मार्क्स है उसके 78 के हम लोगों ने कर दिया 100. Okay, and now I will add the scenario here.
सो हम लोग जाएंगे फिर से व्हाट इफ एनालिसिस में और सिनेरियोस। अभी हम लोग क्या करेंगे, नया सिनेरियो ऐड करेंगे। ओके, सिनेरियो नेम हम लोग क्या करेंगे, साइंस मार्क्स रोल नंबर 1, ठीक है, रोल 1 इतना काफी है फिलहाल के लिए। ओके, एंड चेंजिंग सेल कौन सी होगी हमारी, E4। नाउ आई विल सेलेक्ट द चेंजिंग सेल, दैट इज व्हाट, E4, and I will select it. Okay, and I will press OK and enter the values for change in the OK। ठीक है, ये ऐड हो गए। अभी हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको क्लोज कर दिया। अभी फिर से हमको लोग क्या करते हैं, इसके मार्क्स जो है पर्टिकुलर चेंज कर देते हैं। 2021। Now what I will do, I will apply it marks as suppose 86। मार्क्स कितने थे हमारे, 100 मार्क्स थे, राइट। नाउ व्हाट इफ एनालिसिस, आई विल गो टू द सिनेरियो मैनेजर्स। अभी हम लोग साइंस के, साइंस मार्क्स रोल नंबर 1 2019 थे, ठीक है। देखिए शो हो गया, क्या हो गया, उसके मार्क्स जो थे 100 थे। अभी हम लोग क्या करते हैं, 2020 मार्क्स ऑफ हिंदी शो। ओके, वो एज इट उसने पहले से ही शो कर दिए थे, दैट्स व्हाई इट इज नॉट गोइंग टू शो इट। ओके, सो लाइकवाइज यूज द सिनेरियो एनालिसिस, ये व्हाट इफ एनालिसिस। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत पुराना जो डेटा है हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको वैलिडेट कर सकते हैं, उसको यूज भी कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों को क्या करना है, एक पर्टिकुलर अमाउंट है, जैसे कि अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा पर्टिकुलर मार्क्स है। सपोज एक पर्टिकुलर कार का इंटरेस्ट है, एक पर्टिकुलर लोन इंटरेस्ट है। लास्ट ईयर को कितना लोन इंटरेस्ट था हमारा, 5% था। सपोज ये साल को कितना लोन इंटरेस्ट हो सकता है। सो बाय यूजिंग दैट सिनेरियो एनालिसिस व्हाट वी कैन डू, वी कैन अप्लाई द पर्टिकुलर वैल्यूज हियर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द सिनेरियो मैनेजर। हम लोग इसमें और भी कुछ कंस्ट्रेंट भी लगा सकते हैं इफ यू वांट दिस, like created by whom, then we can delete this. Okay, now I will delete the marks, 2020 marks of Hindi. Okay, I have deleted this scenario also. Then science marks of roll number 1. Okay, I will delete this also. Yes, now no scenario to show. Okay, so likewise what we can do, we can do the scenario manager application. Okay, तो देखिए ये क्या होता है, यहाँ पर स्विचिंग जो हमको इजीली मिल जाता है बाय यूजिंग दी पर्टिकुलर old and new data. So next one what we are going to see is goal seeker. Now the goal seeker is also known as the back solving approach, and it is going to calculate in the what if analysis the backward calculation. देखिए अभी गोल सीकर क्या करता है हमारा, as per the our required output the input will be yield to a given output. देखिए यहाँ पर गोल सीकर को क्या कर सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं दिस इज अनदर व्हाट इफ एल्स what if tools, and what it is going to do here, this tool is going to calculate or it is going to have the backward chain. Yes, यहाँ पर अभी हम लोग क्या कह सकते हैं, the goal seeker is going to use particular what, a particular backward tracking trick. और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, generally this tool is going to find out the target value first, that is target output ये आपको firstly identify करके देगा, और based on that target output it is going to show the input. आउटपुट आपका एक स्पेसिफिक, आपका डिजायर्ड आउटपुट जो है वो क्या करेगा, गोल सीकर आपको लिख के देगा, ये आपको लिख के देना है, और उसके ऊपर हम गोल सीकर क्या करेगा, कैलकुलेशंस करके बैकवर्ड इनपुट जो है वो चेंज करके देगा। सो लेट अस सी हाउ टू यूज द गोल सीकर हियर। ठीक है, नाउ आई विल ओपन दिस। अभी देखिए हमारी टोटल जो है कितनी है, द सेम डेटा में स्टूडेंट डेटा फॉर द ईयर 2021। अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए अपने कितने सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, साइंस। अभी मुझे क्या करना है, देखिए यहाँ पर हिंदी में सारे स्टूडेंट्स को मिलकर 1 2 3 4 आउट ऑफ 100 मार्क्स हैं, तो सबके मिलकर सपोज मुझे चाहिए यहाँ पर 345 की जगह मुझे चाहिए 400 मार्क्स। Okay, I will not write it right now. What I will do, what if analysis and goals. देखिए यहाँ पर सेट सेल कौन सा है, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट करके लिया है,
C8. ओके, टू वैल्यू 345 का मुझे क्या होना चाहिए, एक पर्टिकुलर सपोज हम लोग डायरेक्टली 100 नहीं लेते हैं, 345 की जगह मुझे चाहिए 350. एंड बाय चेंजिंग सेल, अभी मुझे चेंज सेल कौन सा करना चाहिए जिससे कि मेरा आउटपुट जो है वो 350 आ जाए. ठीक है, मैं अभी क्या कर देती हूँ, सेल C5 को ले लेती हूँ. आई विल प्रेस ओके. Now the target value was 350 and current value is 350. Here you can see 345 का अपना क्या हो गया था 350. अभी ये देखिए यहाँ पर C5 की वैल्यू क्या चेंज हो गई 92 हो गई. 345 का हम लोगों ने क्या कर दिया 350. If I control cell you can see here the value was 87. यहाँ पर 87 वैल्यू के क्या हो गया 92 हो गया और 350 जो है वो पर्टिकुलर उसका टोटल काउंट हो गया. So in this way we can use the goal seeker. आप लोग यहाँ पर एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं. अभी हम लोग क्या करते हैं 382 वैल्यू. ओके, अभी मुझे इसको क्या करना है 400 करना है. नाउ व्हाट इफ एनालिसिस आई विल चूज द गोल सेट. राइट, सेट वैल्यू कौन सी है E8. ओके, आई हैव ऑलरेडी सेट इट. तो द वैल्यू व्हाट, अभी मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए इसकी 400 लेनी. ओके, एंड बाय चेंजिंग सेल मुझे कौन से सेल का डेटा जो है वो चेंज करना है. तो फिर सपोज समझ लीजिए यहाँ पर मैं क्या कर देती हूँ E2 सेल का, नो सॉरी E5 सेल इस तरह प्रेस ओके. देखिए यहाँ पर क्या हो गया है 89 का 107 हो गया है बाय यूजिंग दी गोल सीखिए. पर यहाँ पर एक एरर आ गया. देखिए मार्क्स हमेशा कैसे होते साइंस के मार्क्स जो यहाँ पर हमको सब आउट ऑफ 100 है और यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं आ रहा है, कोई कांस्टेंट नहीं आ रहा है. उसने क्या कर दिया 89 का डायरेक्ट 107 कर दिया क्योंकि हमें गोल क्या था हमारा 382 का हमको क्या कन्वर्ट करना था 400 में कन्वर्ट करना था. सो दैट्स व्हाई व्हेन देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस और गोल सीकर. ओके, जैसे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है मुझे 400 आउटपुट चाहिए तो उसने क्या कर दिया उसकी वैल्यू को एक्सीड कर दिया, उसका जो लिमिट था उसने एक्सीड कर दिया. सो टू अवॉइड दिस मिस्टेक वी आर गोइंग टू यूज द सॉल्वर. Okay, so next point we are going to see is solver. That is how to use the solver in the Microsoft Office Excel. Now we can say that what is this mean by firstly solver. I can say that solver is an advanced form. It is an advanced form of the goal seeker because it is going to deal with the multiple equations and multiple unknown values. So let us see how to use the solver there. देखिए अभी सॉल्वर जो है आपको कोई भी टैब में नहीं दिखेगा. फॉर एग्जांपल यू गो टू द होम टैब, हियर इज आल्सो सॉल्वर इज नॉट अवेलेबल. इंसर्ट टैब इज देयर, हियर इज आल्सो सॉल्वर इज नॉट अवेलेबल. पेज लेआउट में नहीं है, फॉर्मूलाज में नहीं है, डेटाज में नहीं है. इफ यू सी फॉर द डिविजन में भी नहीं है, व्यू में भी वो अवेलेबल नहीं है. नेक्स्ट वन इज हेल्प में भी वो अवेलेबल नहीं है. सो अभी हम लोगों को क्या करना है, दैट इज हाउ टू यूज द सॉल्वर टैब. फर्स्टली हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसको इनपुट करके लेना पड़ेगा अपने पर्टिकुलर टूल्स. सो आई विल गो टू द फाइल्स एंड ऑप्शंस. आई शो यू रिपीटली फाइल एंड देन ऑप्शंस. ओके, अभी ऑप्शंस में हम लोग क्या करेंगे, सॉल्वर जो है एक एड इन से. तो फिर यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस है जैसे कि जनरल है, फॉर्मूलाज, डेटा, प्रूफिंग, सेव, लैंग्वेज, एज ऑफ एक्सेस, एडवांस्ड, कस्टमाइज रिबन, देन क्विक एक्सेस टूल बार एंड नेक्स्ट वन इज एडवांस. सो नाउ एडेंस में हम लोग देखेंगे, यहाँ पर हम लोगों को पहले सॉल्वर दिखना है. देखिए इफ यू ऑब्जर्व हियर यहाँ पर सॉल्वर एडिंग जो है वो अवेलेबल है. ओके, एंड आई विल प्लेस इट ऑन ओके एंड मैनेज एक्सेल एडिंग्स. यहाँ पर हम लोग करेंगे गो पे क्लिक एंड व्हाट आई एम गोइंग टू यूज सॉल्वर एडिंग. आई विल क्लिक ऑन द एडिंग्स. ओके, एंड यस यू कैन सी हियर द सॉल्वर इज एडेड. देखिए सॉल्वर का जो है इट इज व्हाट इफ एनालिसिस टूल दैट फाइंड्स द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ अ टारगेट सेल बाय चेंजिंग वैल्यूज इन सेल्स यूज्ड टू कैलकुलेट द टारगेट सेल. सॉल्वर जो है वो क्या करता है, आपकी प्रीडिफाइंड जो पर्टिकुलर वैल्यूज हैं फ्रॉम विच वी आर गोइंग टू हैव द मैक्सिमम और मिनिमम आउटपुट. सो ये क्या करता है, आपकी इनपुट जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम में आपको कन्वर्ट करके देगा. सो अभी हम लोग देखेंगे दैट इज हाउ टू यूज दी सॉल्वर.
ठीक है, सो आई विल क्लिक ऑन द सॉल्वर। नाउ सेट ऑब्जेक्टिव, हमको कौन सा ऑब्जेक्टिव लेना है? सपोज आई एम गोइंग टू हैव दिस 400, मुझे यहाँ पर टोटल जो है वो क्या चाहिए? 400 चाहिए। नाउ हियर टोटल इज 382। मैं एक काम करती हूँ, साइड को लिख के रहती हूँ, द टोटल ऑफ साइंस बिफोर सॉल्वर इज 382। ओके, एंड ये सारी वैल्यूज जो है साइंस की बिफोर सॉल्वर हम लोग यहाँ पर कॉपी करके लेते हैं। देखिए सॉल्वर जो है वो क्या करता है, बहुत सारे, दैट इज इट इज गोइंग टू हैव द मल्टीपल इनपुट्स। जैसे कि हम लोगों ने गोलसिक में देखा था, गोलसिक का प्रॉब्लम क्या है? इट इज गोइंग टू हैव द इनपुट ऑफ ओनली वन सेल। ठीक है, ये पहले की क्या है? साइंस की वैल्यूज है बिफोर यूजिंग द सॉल्वर। नाउ व्हाट इट इज गोइंग टू डू, इट इज गोइंग टू अप्लाई सॉल्वर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? सेट ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या करेंगे? हम लोग इसका एक पर्टिकुलर वैल्यू इसको सेट करेंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है, ओके, यहाँ पर फिर से आ गया है। हम लोग क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करके लेते हैं। ओके, ये सेट ऑब्जेक्टिव ले लिया मैंने, एंड टू वैल्यू ऑफ, मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए इसकी? 400 वैल्यू चाहिए, राइट? सो आई विल राइट हियर 400. Now the most important task here, what I am going to do, by changing variable cells, कौन कौन सी variable cells मुझे change करनी है? ये सारी की सारी, that is science 1 2 3 4. So I will select this. Simply what I have done here, if you see here, ऐसे डायरेक्टली सेलेक्ट कर लो या फिर यहाँ पर आप लोग ब्राउज कर सकते हो और डायरेक्टली यहाँ पर सेलेक्ट करके लीजिए। ठीक है, ओके। अभी हम लोगों को क्या करना है, उसको एक कंस्ट्रेंट जो है वो ऐड करना है। अभी वो हम लोग कैसे ऐड करेंगे? देखिए, ऐड कंस्ट्रेंट हियर। अभी सेल रेफरेंस कौन सा है अपना? 100 89 95 एंड 90, और लेस देन और इक्वल टू, यानी कि इसकी वैल्यूज क्या होनी चाहिए? 100 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हमारे पास बहुत से कंस्ट्रेंट्स और भी है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, तो फिर 100 से इसकी वैल्यू ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 100 ऐड, ओके, सॉरी, हम लोगों ने क्या कर दिया? एम्प्टी कंस्टेंट को फिर से ऐड कर दिया। ठीक है, अभी हमको कैंसिल कर देते हैं। सो सब्जेक्ट टू डी कंस्टेंट, हम लोगों ने उसको कंस्टेंट क्या लगा दिया? उसकी वैल्यूज जो है वो 100 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जो कि हम गोल सिक में नहीं कर पाते थे। गोल सिक में हम लोग क्या कर सकते हैं? पर्टिकुलर सेल को जो है वो सेलेक्ट करके उसको वैल्यूज अप्लाई कर सकते हैं। नाउ मैंने यहाँ पर कंस्टेंट क्या कर दिया? कंस्टेंट लेस देन और इक्वल्स टू 100 कर दिया। ठीक है, ओके, हम लोगों ने ऐड कर दिया। अभी यहाँ पर डिफरेंस देखिए, हम लोग फिर से डिफरेंस देखेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू हैव द सॉल्वर हियर एंड कीप सॉल्वर सॉल्यूशन और रिस्टोर ओरिजिनल वैल्यूज। आपको क्या करना है? कीप सॉल्वर सॉल्यूशन और रिस्टोर ओरिजिनल वैल्यूज हियर। ओके, सो आई विल कीप नाउ रिस्टोर ओरिजिनल वैल्यूज एंड ओके, रिस्टोर में क्या कर दिया उसने? जो ओरिजिनल वैल्यूज थी उसका एज इट इज रहने दिया। एक बार फिर से हम लोग सॉल्वर देखते हैं एंड हम लोग क्या करते हैं? उसको अप्लाई करते हैं, सॉल्व एंड कीप सॉल्वर सॉल्यूशन एज इट इज। ओके करते हैं, ठीक है। सो दिस वे वी कैन यूज दी सॉल्वर हियर। अभी हम लोग क्या करते हैं? इंग्लिश के भी मार्क्स जो है वो चेंज करके देखते हैं। ठीक है, अभी सॉल्वर में हम लोगों ने क्या कर दिया? सेट्स ऑब्जेक्टिव, अभी यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया? ऑब्जेक्टिव कौन सा है अपना? सॉरी, 378, दैट इज D8। ओके, ऐड कर दिया हम लोगों ने बाय चेंजिंग द वेरिएबल सेल्स। कौन सी है अपनी वेरिएबल सेल्स? वो सेलेक्ट कर ली। ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज ऐड कंस्टेंट। ठीक है, सेल रेफरेंस कौन सी है अपनी? लेस देन और इक्वल्स टू 100। ओके, एंड वैल्यू ऑफ कितनी चाहिए हमको? अभी 378 नहीं चाहिए। सपोज आई एम गोइंग टू वैल्यू ऑफ 385।
एंड आई एम गोइंग टू सॉल्व। देखिए वैल्यूज क्या है 92, 98, 92, 96। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, पॉइंट से उसका डिफरेंस हो गया। देखिए हमको क्या चाहिए, एग्जैक्ट 385। नाउ इफ यू आई रिस्टोर द ओरिजिनल वैल्यूज, यू कैन सी हियर रिस्टोर और कीप द सॉल्वर सॉल्यूशन। इसमें क्या कर दिया, अभी उसने थोड़ी सी वैल्यूज चेंज कर दी। ओके ठीक है, आई एम गोइंग टू कीप द सॉल्वर सॉल्यूशन हियर। ओके एंड नाउ सपोज अभी ये वैल्यूज जो है क्या है, पॉइंट में आ गई है, तो हम लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं बाय having some particular decimal points. If you can see here, I can decrease the decimals here. Okay, so likewise we can apply the particular values to the solver again. Okay, so in this way we can easily use the particular solver here. Just try to understand that solver जो है हमारे डेटा टूल में पहले से अवेलेबल नहीं होता है, उसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, फाइल ऑप्शंस में जाएंगे हम लोग फिर से, then what we are going to do, then we are going to use the add-ins, and by using the add-ins we are going to use the Excel add-ins here, right? So likewise we are going to use the solver here. So in this way we have seen how to use the solver in the what if analysis. Okay, so in today's lecture we have seen some of the Excel sheets, that is spreadsheets operation, that is how to use the consolidation of the data, how to consolidate the data. Then we have seen how to calculate the subtotal of the data. Then we have seen how to use the what if analysis. In that, what we have seen how to use the scenarios there, then goal seek there, and solver. Okay, so likewise there are so many operations we can perform by using the Microsoft Office Excel based on the need of the particular spreadsheet. Okay, student, that's all for today. So the reference which we have used is, that is Information Technology by Sumita. Okay, if you have any doubts, you can write in the comment box. As we know that there are, for 5 dollars you can have the free 7 days subscribe, while for the plus subscription. Okay, that's all for today. We will meet in the next session with the new lecture. Thank you. So at the end of the session, let me tell you about the Mega Launch Mondays. It is one of the Unacademy subscriptions. So we are going to have the new batches for doubt clearing and NCERT exercises. And the batch will start from the 5th of July 2021. And its duration is up till the 30th of November 2020. यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे फॉर CBSE क्लास 10, that is target batch 2022. Yes, and it is going to cover the full NCERT syllabus with skill teachers. देखिए हमारी बैच जो है वो स्टार्ट होगी 5th of July 2021 से, and it will end on 30th November 2021. So we are going to have subjects like SST, that is social sciences, आपका मैथ्स भी इसमें क्लियर हो जाएगा, साइंस, then English and Hindi also. So likewise we are having the target batch 2022 for class 9th also. So here also we are going to cover full NCERT syllabus. जिसे क्लास 10th में है वैसे ही आपका क्लास 9th में भी फुल NCERT syllabus जो है वो कवर है. सो यहाँ पर भी आपके पास रहेंगे SST, देन मैथ्स, देन साइंस, इंग्लिश एंड हिंदी कोर्स. So you can subscribe for class 9th and get 10th, 11th and 12th subscription free. Likewise, you can subscribe for class 10th and you can get the subscription for the class 11th and 12th for free. So हमारी अनअकैडमी की जो बैचेस है, these will be new batches every Monday. Every Monday आपकी new batches जो है वो start होंगी for class 9th also and for class 10th also. This will be called as the class target 2022 batch, जहाँ पर हमारा full NCERT syllabus जो है वो cover हो जाएगा. So these are nothing but our unacademy batches for class 9th and class 10th. So I repeat again, that is if you are going to subscribe, आप लोग suppose 9 का subscription लोगे तो आपको क्या रहेगा, उसके साथ क्लास 10th, 11th एंड 12th का भी सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा. सो 9th के बच्चों के लिए बहुत ही एडवांटेज रहेगा. विथ 9 आप लोग क्या कर सकोगे, 10th, 11th एंड 12th का सब्सक्रिप्शन ले पाओगे.
वैसे ही अगर आप लोग क्लास 10 का सब्सक्रिप्शन लोगे उसका भी आपको एडवांटेज रहेगा, आपको उसके साथ क्या करेगा, क्लास 11 एंड 12 का जो सब्सक्रिप्शन है वो भी फ्री में मिल जाएगा। जस्ट ट्राई टू सब्सक्राइब इट and get the subscription free for class 10th and 11th and 12th. For 9th and for 10 you can have the subscription of the 11th and 12th absolutely for free. So अभी मैं आपको अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक जो है उसके बारे में बताऊंगी। ओके, तो प्लस इज व्हाट योर बेसिक प्लान टू गेट स्टार्ट एंड प्लस का जो एडवांस्ड है वो क्या है, आइकॉनिक। यस, यू कैन टेक योर सीबीएसई प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विथ पर्सनल मेंटर। यस, करेक्ट, वी आर हैविंग द पर्सनल मेंटर्स फॉर द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। देखिए पहले हम लोग प्लस के बारे में बात करते हैं। प्लस में आपको मिलेंगे इंडिया बेस्ट एजुकेटर्स, आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस भी मिलेंगी ऑन आवर अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। उसके बाद आपके लिए हमेशा लाइव टेस्ट एंड क्विजेस लेंगी वीकली, मंथली। Then you are going to have the structure course and PDFs. Yes, the PDFs and course that is notes will be shared by the particular educator also. That will be the more benefit for you. Then next one is the iconic subscription. So जैसे कि मैंने अभी बताया आइकॉनिक जो क्या क्या रहेगा, प्लस का एडवांस रहेगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या रहेगा, आपको इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स मिलेंगे, यहाँ पर भी आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिलेंगी ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म एज वेल एज द यूट्यूब आल्सो। यस, प्लस में भी आपको यूट्यूब के लिए अनअकैडमी के लेक्चर्स मिलेंगे, वैसे ही आइकॉनिक मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको लाइव टेस्ट एंड क्विजेस रहेंगे यूजिंग मेंटी क्विजेस, और वी आर हैविंग द डाउट सॉल्विंग सेशंस आल्सो। एंड यस, ऑब्वियसली आइकॉनिक में भी आपको क्या मिलने वाला है, नोट्स एंड पर्टिकुलर पीडीएफ्स आल्सो, दैट इज टोटल स्ट्रक्चर्ड कोर्स भी मिलेगा ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट हियर। ठीक है, बस आइकॉनिक्स में और एडिशनल क्या रहेगा, देखिए यहाँ पर आपको पर्सनल मेंटर रहेगा। यस, दैट इज इंडिविजुअल मेंटर विल बी देयर टू अटेंड योर ऑल doubts and to solve your all doubts, that is live doubt solution भी आपके लिए रहेगा। yes, and yes obviously parent का जो है आपके directly contact रहेगा, that is parent connection will be there। and then next will be you will have your own personal study planner, that will be the benefit of the iconic selection। and अगर आप लोग रेफरल कोड यूज करते हो तो you by using my referral code that is TDI you are going to have the 10% off। सो देखिए अभी यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज हाउ टू यूज द प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। देखिए अभी समझो आप लोगों ने 9 का सब्सक्रिप्शन लिया तो उसके साथ 9, 10, 11 और 12 का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाता है फॉर दी प्लस। ठीक है, वैसे ही आप लोगों ने 9, 10, 11 और 12 का आइकॉनिक का जो सब्सक्रिप्शन है वो ले लिया तो उसके साथ आपको मिल जाता है होल बंच। देखिए अभी आप लोग अगर 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन करोगे तो आपको पड़ेगा 7,500, 7,500 में। अगर 6 मंथ का करोगे तो 10,000, 12 मंथ्स फॉर 15,000, देन 15 मंथ्स फॉर 18,000, और अगर 24 मंथ्स का लोगे तो वो रहेगा आपका 25,000 का। So these will be all the subscriptions for the plus. Okay, so likewise plus we are having iconic, that is it is advanced version of the plus subscription। देखिए अभी iconic में आपको क्या रहेगा, if you are going to for the 3 months subscription आपको पे करने पड़ेंगे 12,000। अब if you are going for 6 months subscription आपके लिए रहेंगे 17,000। likewise if you go for 12 months you will have the 28,000। देखिए आप लोग जितना ज्यादा यूज करेंगे यानी कि जितना ज्यादा मंथ्स का आप लोग सब्सक्रिप्शन लोगे उतना ही क्या रहेगा, आपको डिस्काउंट भी अच्छे से मिलेगा। सो यहाँ पर आप लोग अगर 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन करोगे तो आपको रहेंगे 48,000। सो लाइकवाइज यू आर गोइंग टू हैव द सब्सक्रिप्शन फॉर द 9, 10th, 11th, 12th प्लस एंड 9, 10th, 11th, 12th आइकॉनिक। सो उसके बाद अगर आप लोग क्लास 10 के लिए जाओगे तो क्लास 10 के लिए 11th एंड 12th का भी सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। सो अगर हम लोग प्लस के बारे में देखें तो यहाँ पर क्या होता है, फॉर 3 मंथ्स यू हैव टू पे 7,500, देन उसके बाद फॉर 6 मंथ यू हैव टू पे 10K, दैट इज 10,000, फॉर 12 मंथ्स यू कैन पे फॉर द 15,000। सो वैसे ही आप लोगों को क्या क्या रहेगा, 15 मंथ्स का 18,000 के लिए, 18 मंथ्स का आपके लिए रहेगा 20,000, 24 मंथ्स का रहेगा 25,000 के लिए, एंड 36 मंथ का 32,000 के लिए। सो अगर आप लोग 10th में हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है कि आप लोग 11 का और 12 का सब्सक्रिप्शन भी उसके साथ ले सकते हैं। सो वैसे ही अगर आप लोग आइकॉनिक के लिए जाओगे
इफ यू गो फॉर द आइकन, देखिए यहाँ पर 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन जो है वो रहेगा 12,000 के लिए, देन 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है वो रहेगा 17,000 के लिए, देन नेक्स्ट वन इज 12 मंथ्स फॉर 28,000, then 15 months for 32,000, then 18 months for 35,000, then 24 months for 48,000, and lastly 36 months for 66,000. So I would suggest if you are going for the 9th, then you can have the benefit of both 9th, 10th, 11th and 12th. अगर आप लोग 10th में जाओगे, 10th का सब्सक्रिप्शन आप लोग दोगे जो 10th के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको 11th and 12th का सब्सक्रिप्शन भी उसके साथ मिल जाएगा. So and you can use my referral code also with the flat 10% off discount. So now Unacademy is going to have the scholarship worth of rupees 1 crore plus in month of the July. Yes, we are going to have the Unacademy compact. यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, we are going to have weekly scholarship tests for CBSE class 9th and 10th students. So specifically for 9th and 10th के जो बच्चे हैं वो लोग ये स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए अप्लाई करेंगे. So ये जो एग्जाम रहेगी that is this comeback will be available or it will be in English and Hindi. In both language it will be available on the date of the 4th July at 11 am. So you can enroll now in the link which is given in the description box. So अभी Unacademy Combat Scholarship Text में आप लोग क्या 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 जीत सकते हो. ओके, इट इज योर फॉर्मूला फॉर सक्सेस. फर्स्टली आपका स्टडी अच्छे से हो जाएगा. इफ यू आर गोइंग फॉर द स्कॉलरशिप टेस्ट देन इट विल बी हैव मोर एनकरेजमेंट फॉर यू टू स्टडी मोर एंड इट विल बी फन लर्निंग. सो यहाँ पर इसके साथ साथ आप लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज स्कॉलरशिप्स वर्थ रुपीज 1 crore. यस, बिल्कुल सही. एंड द एग्जाम टाइम विल बी 45 मिनट्स. आपकी जो एग्जाम टाइम रहेगा वो रहेगा 45 मिनट्स का. इट विल बी हैविंग द 30 क्वेश्चंस. देखिए 30 क्वेश्चंस रहेंगे 45 मिनट्स के लिए. ओके, एंड यू कैन हैव दिस लाइव टेस्ट फ्री. ओके, इसके लिए कोई आपको सब्सक्रिप्शन नहीं करना है. यू कैन हैव दिस फ्री लाइव टेस्ट ऑन योर सिंपल एंड्रॉइड फोन. If you are having a laptop, you can use the laptop also. And yes, obviously tests are going to have in Hindi and English as per your convenience. So just remember this test will be there for only for CBSE class 9 and just try to note down the date. That is what 4th July at 11. Okay, I hope you understood what is this Unacademy Combat Scholarship Test. So you can have the 10% off on Unacademy Plus and Iconic subscription if you are going to use my referral code, that is TD Live. Okay, so and yes, obviously you can download the Unacademy app that is totally for free. And you can use its all features for free. And you please use my referral code that is TDLove if you are going to download the particular Unacademy education app. So students, that's all for today. We will meet in the next lecture. Unacademy. Let's crack it. Till then,